Hello मेरे innocent बच्चों. So I hope you all are in good health. So welcome to Ma'am Accountancy Tuition Center and your channel, that is Account Ru. Okay. So it seems you all are doing hard work and you all are sending your assignment on time. Very good. I really proud of you all, my dear student. बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और टाइम पे अपना होमवर्क और असाइनमेंट मुझे भेज रहे हो. ठीक है. सो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए. आप लोग का जो भविष्य है बहुत अच्छे होंगे. ठीक है. सो आज हम लोग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सरसाइज के कुछ काम करेंगे. ठीक है. तो उससे पहले हम लोग थोड़ा अलग बात करते हैं. ओके. तो आज ये मैं हाँ रिलेशनशिप और कथा बतौल. ठीक है. क्लियर. येस, इट्स रिलेशनशिप. ओके. सो बेसिकली व्हाट हैपन इन टूडेज जनरेशन, मेरे जो छोटे मोटे गोलू मोलू जो इनोसेंट बच्चे हैं उन लोग रिलेशनशिप में आते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इन टूडेज जनरेशन, इट्स ब्रेकअप. ओके. सो वो लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं. ठीक है. तो जब ब्रेकअप करो व्हाट हैपन आफ्टर ब्रेकअप, एंडलेस टीयर्स एंड स्लीपलेस नाइट. येस, इट्स एंडलेस टीयर्स एंड स्लीपलेस नाइट. ओके. ৰাতি ৰাতি টোপনি নাহিব আৰু চকুৰ পৰা কি যাব, পানীবিলাক বৈ থাকিব. ঠিক আছে. চ' বেচিকেলি হোৱাট আই ৱান্ট টু এডভাইচ ইউ ডেট, মই তোমালোক কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, কিয় না हम लोग ব্ৰেকআপ কৰোঁ. অ'কে. অ'কে. যদি ব্ৰেকআপ নহয় তেতিয়া তোমালোকৰ এইটো প্ৰব্লেমেই নহয়. চ' নাও দ্য কুৱেশ্যন ইজ হাউ টু ষ্টপ দিছ ব্ৰেকআপ, হাউ টু ষ্টপ দিছ প্ৰব্লেম. অ'কে. কেনেকৈ আমি ব্ৰেকআপ ৰখাম. ঠিক আছে. চ' একদম চিম্পল. ইফ ইউ ৱান্ট টু ষ্টপ ব্ৰেকআপ অৰ ইফ ইউ ডু নট ৱান্ট টু ফেচ এনি কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম ইন ইউৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, চিম্পল, ইয়ৰ সিলেকশন মাষ্ট বি গুড. তুমি ভাল সিলেক্ট কৰিলেহে তোমাৰ ব্ৰেকআপ নহয় বা তুমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ একো প্ৰব্লেম নাপাবা. ঠিক আছে. নাও ইন টুডেজ জেনেৰেশ্যন ইট ইজ ভেৰি টাফ টু ফাইণ্ড আউট সামওয়ান হু ইজ পাৰফেক্ট, হু ক্যান আন্ডাৰষ্টেণ্ড ইউ. অ'কে. চ' চব ফেক. অ'কে. নট চব, মেক্সিমাম তুমি ফেকে পাবা. ঠিক আছে. চ' বেচিকেলি আই ৱান্ট টু এডভাইচ ইউ, তুমি কেনেকৈ চাবা ৱেডাৰ ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ ইজ ৰয়েল উইথ ইউ অৰ নট. ठीक है. आई रिपीट, वेदर योर पार्टनर इज लॉयल विथ यू और नॉट. ठीक है. हाउ टू आइडेंटिफाई, एकदम सिंपल रूल है भाई. ध्यान से दिमाग में घुसा लो, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे. ठीक है. अगर ये वाला टिक्स तुम लोग को आ गया ना, लाइफ में तुमको कोई धोखा नहीं दे सकता. ठीक है. सिंपल है. अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, ओके, फ्रॉम बोथ साइड, ओके, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तुम्हारा रिलेशनशिप पब्लिकली शेयर नहीं कर पा रहे, মানে পাব্লিকলি যদি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা নাই, ডেট মিনছ সামথিং ইজ ৰং. দেয়াৰ মাষ্ট বি সাম উইকনেছ অন ইউৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ. অ'কে. চ' মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আই ৱান্ট টু চে ইউ ডেট ইট ইজ চিম্পল টু ফাইণ্ড আউট অৰ টু আইডেণ্টিফাই ৱেডাৰ ইউ আৰ ইন এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ এ পাৰফেক্ট গাৰ্ল অৰ বয় অৰ নট. ঠিক আছে. চ' হোৱাট ইউ হেভ টু ডু, ইউ হেভ টু টেষ্ট ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ ৱেডাৰ হি অৰ চি কেন এক্সপ্ৰেছ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন পাব্লিকলি অৰ নট, এণ্ড ডাজেণ্ট মিনছ to express all this in a social media. For example, मैं कोई ना कि फेसबुक फोटो अपलोड दिले है your relationship by your partnership partner perfect. ठीक है. मैं কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, suppose তোমাৰ পাৰ্টনাৰে তোমাক নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ইন্ট্ৰডিউস কৰিব লাজ পাই আছে. ঠিক আছে. suppose তোমাৰ পাৰ্টনাৰে তোমাক yes I am talking about you, তোমাক suppose নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ইন্ট্ৰডিউস মানে চিনাকি কৰাই দিব লাজ পাই, that means something is wrong. মানে সেই পাৰ্টনাৰজনে তোমাক ট্ৰু লাভ নকৰে. ঠিক আছে. আৰু যদি ফ্ৰেণ্ডক ইন্ট্ৰডিউস কৰোঁতে একো লাজ ফিল কৰা নাই, একো যদি হেজিটেট ফিল কৰা নাই, ডেট মিনছ ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ ইজ পাৰফেক্ট, মানে তোমাক ট্ৰু লাভ কৰে. অ'কে. চ' চিম্পলি হোৱাট আই ৱান্ট টু চে, ইফ ছামৱান ইজ ৰেডি অৰ ডু নট ফিল ছেম টু ইন্ট্ৰডিউস ইউ ইন ফ্ৰণ্ট অফ পাব্লিক, ইন ফ্ৰণ্ট অফ ছামৱান, ইন ফ্ৰণ্ট অফ ফ্ৰেণ্ড, ইন ফ্ৰণ্ট অফ ফেমিলি, চ' ইট মিনছ ইউ আৰ ইন এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ এ গুড পাৰ্চন. ঠিক আছে. এইটো কথা লাইফত মনত ৰাখিবা. আৰু যোনে তোমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ পাব্লিকলি বা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ আগত ইন্ট্ৰডিউস বা এক্সপ্ৰেছ কৰা নাই, ডেট মিনছ সামথিং ইজ ৰং, মানে সেই পাৰ্চনজনে তোমাক ট্ৰু লাভ নকৰে. দে আৰ চেলফিছ, লাইফত তোমাক বহুত ঠগাব. চ' বেটাৰ এতিয়াতে ষ্টেপ লোৱা, তুমি টেষ্ট কৰা নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ ৰয়েলটি ৱেডাৰ দে লাভ ইউ ট্ৰুলি অৰ নট. ঠিক আছে. ক্লিয়াৰ. আৰু মই এইটো কোৱা নাই কি মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে ফেচবুকত ফটো দুটাৰ আপলোড দিয়া, মই জাষ্ট কৈছোঁ কি পাব্লিকলি এক্সপ্ৰেছ মিনছ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ আগত ক'ব পৰা নাই. ঠিক আছে. বা ছাপ'জ তোমাৰ বাৰ্থডেত হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছ দিয়া নাই. ক্লিয়াৰ. সামথিং ইজ ৰং. অ'কে. চ' প্লিজ এনেকুৱা টাইপ জালত নাফচিবা. আৰু যেতিয়া জালত নাফচিবা তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰব্লেম নহ'ব, আৰু প্ৰব্লেম নহ'লে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িব পাৰিবা. ঠিক আছে. চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আই ৰিকুৱেষ্ট অল অফ ইউ প্লিজ লুক অন দ্য স্ক্ৰীন. চ' আজি আহা আমাৰ টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ. ঠিক আছে.
सो आप बिबिधाम साৰৰ যোনবিলাক এক্সাৰচাইজ আছে মোৰ তাত পেজ নম্বৰ 1.108 আৰু তোমালোকৰ চাগে বেলেগ বেলেগ পেজ নম্বৰ হ'ব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই ট্ৰু এণ্ড ফলছ এক্সাৰচাইজৰ ফাৰ্ষ্ট আমি ট্ৰু এণ্ড ফলছ কৰিম দেন ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ দেন দুটা প্ৰেক্টিকেল চাম বাছ আজি কাৰণে অনলি 4টা কুৱেশ্যন কৰিম ট্ৰু এণ্ড ফলছ ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ এণ্ড দুটা প্ৰেক্টিকেল চাম ঠিক আছে সো প্লিজ সবে আহা পেজ নম্বৰ 1.108 কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ বেছিক ৰুল কি আছিলে we have to hide our answer ঠিক আছে answer থাকা সো মই থাকি আছো এটোৰে ठीक है क्लियर यस आई एम हाइडिंग ठीक है तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता प्लीज आप लोग भी आंसर किसी एक कॉपी से कवर कर लीजिए ठीक है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए ठीक है और अगर आप लोगों को आंसर देखना आप देखो लेकिन वीडियो ऑफ करना ठीक है क्योंकि देयर इज नो बेनिफिट इफ यू आर सिटिंग इवन आफ्टर टेकिंग ट्यूशंस देयर इज नो बेनिफिट ऑफ वेस्टिंग सच मनी ओके योर पेरेंट्स अर्निंग समथिंग एंड giving to you it means you have to respect those giving okay so হেবিলাক তুমি ৰেসপেক্ট কৰা যদি ৰেসপেক্ট কৰা দেন ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰা আৰু যদি সিটিং কৰি যদি লিখিব মন আছে তলত আনসাৰ দিয়া আছে যদি চাই কিনি লিখিব মন আছে গো ফৰ ইট আই এম নো ওয়ান টু ষ্টপ ইউ বিকজ মই তোমাক চাই দেখা নাই বাট প্ৰবলেম ইন ফিউচাৰ প্ৰবলেম ইউ উইল ফেস ওকে ঠিক আছে এন্ড अगेन যদি ইউটিউব মোৰ চেনেল আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰা এন্ড ভিডিওটো লাইক এন্ড শেয়ার প্লিজ करना ठीक है So my dear student, it's page number 1.108. Okay, what is the page number? Page number 1.108. Or jar 1.108 or nine, no problem. What you have to do? You have to come to the exercise. Okay, to me exercise ole aha. That first juntu sam ase true and false. Okay, or in case jodi bisari pan it's okay. We have the question on our screen. So screen ole swa. Moi screen on question kita ani disu. Or jar book ase please book out saba. Got it? So here this one is 18 okay at first let's do the true and false so we have this true and false in front of us और ইয়াতে কৰি দিও নে বেলেগ কৰি দিম কোৱা I think ইয়াতে কৰিলে বেছি বেনিফিট হ'ব ঠিক আছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব পাৰিবা got it so state whether each of the following statement is true or false okay I mean true and false लिखो true माने correct false माने incorrect ठीक है so aha first one is receipt and payment account is nothing but a summary of the cash transaction so already we have finished all the theory portion from this chapter so I think you will not going to face so much of difficulty while solving these questions okay so देखो ऑलरेडी हम लोग ने सब कंप्लीट कर लिया है मतलब थ्योरी कंप्लीट किया ठीक है सो जितना भी मैंने पढ़ाया ना आप लोग को वो सब के ऊपर बेस करके ये सब क्वेश्चन है ठीक है सो प्लीज निजर ब्रेन टू यूज करा फर्स्ट वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग but a summary of the cash transaction प्लीज मनत करा प्लीज रिकॉल अबाउट द फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट এটা পইণ্ট অন এনআরসি মন আছে না শর্ট কি শর্ট এনআরসি তার এটা আছিল এজ ফর কি আছিল সামারি অফ ক্যাশ বুক সো দিস ইজ আওয়ার true T means true okay the next one is receipt and payment account is an expenses account monot kor receipt and payment account ki account expense account hoy na personal account na real account absolutely correct real account so this one is false income and expenditure account is a liability account income and expenditure account liability nahi tumi asset and liabilities likha jano no hoy ami income and expenditure account ki likhu income and expenses revenue and expenses ঠিক আছে not revenue absolutely মানে not revenue exactly কি লিখো আমি income and expenditure so কি হয় কোৱা liability account ন হয় so কি হ'ব এটো false income and expenditure is an expense account this is the correct answer perfect answer ঠিক আছে income and expenditure কি হয় expense account so liability account no হয় so false ঠিক আছে our credit balance of the income and expenditure account denote excess of expense over income কি কৈছে our credit balance of income and expenditure account denotes excess of expense over the income so credit balance মানে কি মানে তোমাৰ ক্ৰেডিট সাইডে বেছি আছে আৰু ডেবিট সাইডে কম আছে ওকে মই বুজাই দিও সাপোজ আচ্ছা মই বেলেগ এটা শীটত বুজাই আছো ঠিক আছে ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্ট ঠিক আছে গট ইট টি ফৰমেট rule কি আছিল ডেবিট অল এক্সপেন্সেস ক্ৰেডিটস অল
ইনকাম গুড। সো ইয়াতে আমি কি লিখো এক্সপেন্স, দেন রুপিস, দেন ইনকাম, দেন রুপিস। ঠিক আছে ক্লিয়াৰ। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চোৱা, a credit balance of income and expenditure account, credit balance of income and expenditure account মানে কি ক্রেডিট সাইডে বেশি আছে। for example credit side, credit, this one is debit side, okay, and this one is credit side, you all know that, okay. So what the question say that or credit balance of the income and expenditure, that means credit side, credit balance মানে credit side বেশি, डेबिट बैलेंस में डेबिट साइड बेसी। ध्यान दिबा मरण रखा पिछो काम दियो बहुत, ठीक है। आई रिपीट, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, डेबिट साइड में ज़्यादा है, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड में हम लोग का ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल सपोज XYZ आइटम 10,000 एंड ABC आइटम, तो ट्रांजेक्शन दिस ट्रांजेक्शन हो गया एग्जांपल 6,000। ये अभी मुझे बोलो कौन सा साइड में जा रहा है, डेबिट साइड में जा रहा है या क्रेडिट साइड में जा रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्रेडिट साइड में जा रहा है। दैट मींस वी हैव 10,000, सो हम लोग अभी इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। अगर उल्टा होता 5%, अगर डेबिट साइड में 10,000 रहता और क्रेडिट साइड में आपका 6,000 रहता, तब क्या होता, डेबिट बैलेंस, ठीक है। सो फिलहाल के लिए क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो और क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिनोट्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द इनकम। बोल रहे एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द इनकम, बोला कि एक्सपेंस ज्यादा है कंपेयर टू इनकम, मींस एक्सपेंस इज ग्रेटर देन इनकम। अब मुझे बोला अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा है, एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है या इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है। आई रिपीट, इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है या एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है, इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है या एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, हियर इनकम इज मोर देन द एक्सपेंस, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि स्टेटमेंट पे बोला है कि एक्सपेंस ज्यादा है। सो बच्चों क्या होंगे यहाँ पे, बोलियो फॉल्स, एफ, ओके। क्लियर है, अगर क्लियर है तो प्लीज डू मैसेज और यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, ओके, ठीक है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन मैम अकाउंटेंसी ट्यूशन सेंटर 24/7 आवर्स डाउट क्लियर सेशन, एनी टाइम एनीवेयर। जब भी डाउट हो, कहीं तुम बस में जा रहे हो, डाउट हो, डू कॉल, ओके। नंबर्स दिया हुआ है आप लोग को, यू ऑल हैव माय नंबर्स एंड माय स्टाफ नंबर्स, प्लीज डू कॉल व्हेनेवर यू नीड हेल्प, ओके। सो नेक्स्ट वन इज ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयरिंग व्हेयर ओपनिंग फंड अकाउंट इज नॉट गिवन। ये तुम लोग के लिए शायद तुम लोग को थ्योरी में नहीं मिला है, ठीक है। बोला है ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर व्हाइल ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। ये ना तुम लोग जब बैलेंस शीट करोगे तब तुम लोग को ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग ने अभी तक बैलेंस शीट का प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं किया। इवन वी हैव नॉट डन थ्योरी पोर्शन आल्सो फ्रॉम बैलेंस शीट, ओके। सो वी आर डूइंग नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, गॉट इट। सो फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ देते या आंसर बोल देते, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आंसर बोल देता, बाद में हम लोग ठीक से समझेंगे, ठीक है। दिस इज ट्रू। बोला है ओपनिंग बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट तुम लोग को पता है जहां पे एसेट एंड लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी बा ऑफ अ फर्म, ठीक है। से वहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में तुम लोग का हमेशा बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या है, जो एक तारीख को बनाते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल और 1 जनवरी, और क्लोजिंग बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, यू ऑल नो दैट, ठीक है। से बोला है कभी कभी क्या रहते हैं हम लोग को क्वेश्चन में, we have to prepare receipt and payment. What are the financial statement prepared by NPO? RBI, remember RBI, receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet, ठीक है। से बैलेंस शीट हम लोग को एंड पे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो when we are going to prepare balance sheet at the end, we need the opening balance of capital. What we need, opening balance of the capital, ठीक है। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में कैपिटल हम लोग को दिया हुआ नहीं रहता है। सो ऑन दैट पर्टिकुलर केस we have to need, we have to prepare an additional balance sheet that is known as opening balance sheet to find out the ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स या तो मेंबर्स या तो कंपनी, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ट्रू। तो इन सिंपल किया ओपन आमार कैपिटल ओखाने আমি কি বানাও ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट, एनी सब्सक्रिप्शन received in advance are treated as capital receipt and are therefore taken to the liability side of the balance sheet. Any subscription received in advance are taken as capital receipt and therefore taken to the liability side of the balance sheet. True. This one is true, ठीक है। बोला एनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो एनी सब्सक्रिप्शन क्या है, विद इन द मेंबर जब पे करते हैं। अब तुमको एडवांस में रिसीव कर रहे हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल रिसीव, ठीक है। और कहाँ पे जाता है ये, लायबिलिटी साइड। किसके साथ रीड होता है ये,
कैपिटल रिसीट तो क्या होगा, कैपिटल के साथ ही होगा, ठीक है, क्लियर है। तो और ये हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करें, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। अगेन आई रिपीट, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है, विद द मेंबर जब हम लोग पे करते हैं, ठीक है। अब ये जो तुमको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, ठीक है, अब ये हम लोग के लिए कैपिटल रिसीट बोला है, ठीक है। यस वी नो, वी ऑल नो दैट क्या है कैपिटल रिसीट, सब्सक्रिप्शन क्या है हम लोग के लिए कैपिटल रिसीट है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट, दैट इज fee received from life membership is a revenue received as it is of recurring in nature। देखो क्या बोला है, फ्री रिसिप्ट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी। पहले तो मुझे बोलो बोलो आंसर मी फर्स्ट, व्हाट डू मीन बाय लाइफ मेंबरशिप फी। व्हाट, जब भी कोई आदमी तुम्हारे क्लब में ज्वाइन कर रहे हैं एंड ही पेड अ लामसम अमाउंट फॉर हिज होल लाइफ, पूरे अपने लाइफ গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে অনলি এবাৰেই পে' কৰিছে, হি অৰ চি ডু নট নিড টু পে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মানি এনুৱেলি অৰ মান্থলি, ঠিক আছে। চ' পিৰিয়ডিকেলি সিহঁতে একো দিব নালাগে, সিহঁতে এবাৰেই পে' কৰিছে। চ' হুৱেন হি পেড ফৰ ওৱান টাইম, যেতিয়া এবাৰেই দিব সেইটো কেপিটেল হ'ব নে ৰেভিনিউ হ'ব, একদম ইজি, কি হ'ব কোৱা, ইট ইজ আ কেপিটেল ইন নেচাৰ, বাট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এইটো ৰেভিনিউ হয়, চ' কি হ'ব এইটো আমাৰ কাৰণে ফল্ছ। Got it? The next one is income and expenditure account related to specific funds should not be considered in the income and expenditure account. মনত কৰা income and expenditure account specific fund কাৰণে কৰিলে কি হ'ব, আমি ৰেকৰ্ড কৰিম নে, income and expenditure account related to specific funds should not be considered in the income and expenditure account. স্পেচিফিক ফাণ্ডৰ কাৰণে যদি কয় আমি ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ ৰেকৰ্ড কৰোঁ জানো, আমি ৰেকৰ্ড নকৰোঁ, বিকজ ইট ইজ আ কেপিটেল ৰিচিপ্ট। চ' দিছ ওৱান ইজ ট্ৰু, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউণ্টত যোনটো মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত চাই ল'বা যদি ডাউট হৈছে, বাট অলৰেডি মই ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ। কি কৰিছোঁ চোৱা, স্পেচিফিক পাৰ্পাছ মানে কি, ছাপ'জ তোমাৰ দিছে ডনেশ্যন, ডেট মিনছ একো লিখি দিয়ে নে কিহৰ কাৰণে ডনেশ্যন দিছে, ইউ কেন ইউটিলাইজ একৰ্ডিং টু ইয়ৰ চেল্ফ, ঠিক আছে। কিন্তু বাট जब तुमको डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिल रहा है, अब कोई स्पेसिफिक कोई एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए मिल रहा है कि नहीं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अब तुम वो डोनेशन किसके लिए यूज कर सकते, ओनली फॉर बिल्डिंग, सो इट बिकम कैपिटल रिसीप्ट, सो यू हैव टू डू ओम इग्नोराई नमा, सो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू एंड पेमेंट, क्या ओनली रेवेन्यू करेंगे, पागल है क्या, दोनों करते हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। 9 number to false, ठीक है। 10 number is receipt from sale of all asset are always treated as income, receipt from sale of old asset are always treated as income, false। पूरा अमाउंट थोड़ी ना इनकम है, उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, बुक वैल्यू, ठीक है। इनकम रिसीप्ट इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, इनकम रिसीप्ट इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, यस ट्रू। तुम लोग को तुम कोई एक इनकम एडवांस पे ले रहे हो, तुम्हारे लाइबिलिटी से कि नहीं, फॉर एग्जांपल तुम लोग मुझे ट्यूशन फी 1 साल के लिए पे कर दिया, ठीक है। अब मेरे लिए इनकम है, कौन सा इनकम है, बोलो एडवांस इनकम, क्योंकि मैंने अब तक ट्यूशन किया नहीं फिर भी मैं पैसा ले रहा हूँ। अब मुझे बोलो मुझे तुम लोग को ट्यूशन कराना है कि नहीं, कैसे किसी भी हाल में कराना है, क्योंकि मैंने तुम लोग से पैसा लेके रखा है, ठीक है। मैं तुम्हारे पर किलो से पैसा লৈছো, ठीक है। सो एनी हाउ आई हैव टू डू ट्यूशन in any circumstance, because মই 1 বছৰ কাৰণে টিউচন ফি এডভান্স লৈছো, this advance taken is income for me, advance income, so মোৰ কাৰণে ইনডাইৰেক্টলি লাইবিলিটিজ হ'ল নে নাই কোৱা, বিকজ মই ডিউটি কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈ টিউচন 1 বছৰ কমপ্লিট নহয়, ঠিক আছে। দেন নেক্সট ওৱান ইজ এমাউণ্ট ৰিচিভড এজ লিগেচি ক্ৰেডিট টু ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট, লিগেচি মানে কি আছিলে, okay, amount received as legacy is credited to income and expenditure account। oh, इसमें कंफ्यूज हो रहा है, इस ये वाला, ठीक है। दिस वन वी आर सॉल्विंग दिस वन, एरो मार्जिन दिस মই ঠিক আছে, क्लियर है। इनकम रिसीव्ड एंड लेगेसी, लेगेसी মানে কি আছিল, मर गया लेकिन दे गया, आई रिपीट द मास्टर पॉइंट, मर गया लेकिन दे गया, মৰি গল কিন্তু দি গল। लेगेसी মানে কি আছিল, যেতিয়া কোনোবা যে মৰিব ওলা, যেতিয়া গোটেই প্ৰপাৰ্টি বিলাক এনজিঅ'ক দান কৰে, দিস ट्रांजैक्शन दिस प्रोसेस इज नोन एज लेगेसी, ठीक है। जब भी कोई मरने वाला होता है और मरने से पहले क्या करते हैं लोग, कोई के महान आदमी अपना पूरा प्रॉपर्टी किसको दान करता है, कोई एक चैरिटी को, कोई एक एनजीओ को, कोई एक एनपीओ को, ठीक है। तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीगेसी। अब मुझे बोलो आदमी एक ही बार मरता है बार बार मरता है, आई रिपीट द क्वेश्चन, आदमी एक ही बार मरता है या बार बार मरता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक ही बार मरेगा तो ये कैपिटल रिसीप्ट है, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करते, मेरे बच्चों को ये बात पता है, हम लोग ने क्लास किया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि कैपिटल से हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। और
इस सेंटेंस में बोला है कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब कोई नालायक के मन में ये क्वेश्चन आया होगा पक्का कि सर अगर करण अर्जुन ने दान दिया होता तो क्या होता, क्योंकि करण अर्जुन आको जन्म बचले ठीक है से। सो देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग दिस पॉइंट, करण अर्जुन हो या कोई भी हो, ठीक है, मेरा बेटा आएगा, ठीक है, कोई भी हो, तुम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। अब ज़्यादा तुम स्मार्ट मत बनो, ठीक है। करण अर्जुन होने से क्या हुआ, एक बार तो मरा ना, ठीक है। सपोज समझ लो कि दोबारा दोबारा आया तो दोबारा थोड़ी ना प्रॉपर्टी देके जाएगा, उन लोगों को याद ही नहीं रहेगा क्या क्या प्रॉपर्टी था, ठीक है। करण अर्जुन मूवी देखे हो ना तुम लोग, जहाँ पे पुनर्जन्म लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिगेन विथ अ बैलेंस, फॉल्स। ओपनिंग बैलेंस रहता है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बोलो, नहीं रहता है, कहाँ पे रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, गुड। द सरप्लस ऑफ एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर, अच्छा बेटा, बोला कि जो तुम लोग प्रॉफिट अर्न करते हो, प्रॉफिट नहीं, एग्जैक्टली दिस इज नॉट ट्रीट एज प्रॉफिट, दिस विल बी ट्रीट एज सरप्लस, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस, ठीक है। बोला सरप्लस जो मेंबर खा जाता है, इज इट करेक्ट, नो, नेक्स्ट ईयर में यूज करेगा, ठीक है। डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर ऑलवेज कैपिटलाइज, ट्रू। सपोज तुमको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम लोग को, देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये ना पूरा एकदम चिपकू करके लगा हुआ है, ठीक है। बोला कि डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई एक स्पेसिफिक पर्पस मतलब कोई एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए तुम लोग को डोनेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ग्रांट फॉर बिल्डिंग, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या, बोला ऑलवेज कैपिटलाइज, बोला क्या रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते, ठीक है। कैपिटलाइज का मतलब क्या, कैपिटल रिसीव, सो दिस इज ट्रू। एन एनपीओ नेवर अंडरटेक एनी ट्रेड एक्टिविटीज, बोला कि एनपीओ कभी भी ट्रेड एक्टिविटीज नहीं करते, नॉर्मली ना ये नहीं करते, ठीक है, लेकिन कभी कभी कर भी सकते हैं। स्कॉलरशिप ग्रांट टू स्टूडेंट आउट ऑफ फंड प्रोवाइडेड गवर्नमेंट विल बी डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉल्स। बोला कि स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट आउट ऑफ द फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नहीं ये कैपिटल है, ठीक है, इग्नोर, ओम इग्नोर आई नमा, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रैक्टिकल करके तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, अभी क्लियर क्या होगा, ये इग्नोर आई नमा। देन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया इज अ एनपीओ, बोला कि जो सीए है वो एनपीओ है, यस, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है, इंस्टीट्यूट है, वो क्या है हम लोग के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तुम अगर तुम कंपेयर करोगे ना, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स लो, सी इज द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स फॉर कॉमर्स, इवन फॉर ऑल स्ट्रीम ऑल्सो। यहाँ पे पैसा तुम लोग का बिल्कुल कम खर्च होता है, बहुत कम खर्च होता काम हो, एंड यू हैव ए ब्राइट स्कोप, बहुत ভাল ভাল স্কোপ আছে, ঠিক আছে, বহুত ভাল ভাল তোমাৰ পেকেজেছ পাবা ওয়ান্স ইউ ক্লিয়ার ইট, প্রভাইডেড ইউ হ্যাভ টু ডু হার্ড ওয়ার্ক, অলপ টাফ হয় বাট ফিনান্সিয়ালি ন বহুত কম পইচা লাগে, সো এনি ওয়ান ক্যান এফোর্ড, a person, a student from lower class or middle class, they can also afford. বাকি কোর্সবিলাক তুমি চাবা, if you want to do MBA you require a huge amount, but if you want to do CA it is very 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 cheap, even cheapest in the world, सबसे কম খরচত ভাল কোর্স হয় and ভাল স্কোপ আছে, ঠিক আছে। so I recommended you all, once you clear it class 12 please go for C if you are ready to do hard work, ঠিক আছে। The last one is non-cash item are not considered while preparing income and expenditure account, false। Non-cash item like law, for example depreciation is a loss, is a expense, so you have to record on the income and expenditure account, receipt and payment account আমি নলওঁ, ঠিক আছে। so my dear student, 20 question has been solved, so I hope সব কেইটা বুজিছা, other than two or three question সেই দুটা তিনিটা কেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব, যেতিয়া তুমি ৰিচিপ্ট সৰি যেতিয়া তুমি প্ৰেক্টিকেল চামবিলাক কৰিবা, ফৰ এক্সাম্পল বেলেঞ্চ শ্বীট কিয় আমি বনাইছিলোঁ, অপেনিং বেলেঞ্চ, এইবিলাক অলৰেডি মই কৈছোঁ, কেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব, যেতিয়া when you are understanding or understood the practical points on balance sheet, ঠিক আছে। so this is finished, ঠিক আছে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা এবাৰ, পিছত একদম প্ৰপাৰলি লিখি কিনে মোক পঠাবা, ঠিক আছে, আৰু যোনে যোনে কৰিছা প্লিজ চেক ইট। ডান, ঠিক আছে। নেক্সট উই হেভ ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, চোৱা আমি থিয়ৰি বহুত কৰিলোঁ, এতিয়া থিয়ৰি কৰিলে বৰ হৈ যায়, ময়ো বৰ হওঁ, তোমালোকে চাগে বৰ হৈছা, চ' বেটাৰ আমি এতিয়া কি কৰোঁ, প্ৰেক্টিকেল চাম কৰোঁ, ঠিক আছে, তাৰপিছত এগেইন আমি এইটো কৰিম, ফিল ইন দ্য ব্লেংক, ঠিক আছে। চ' উই হেভ এ প্ৰেক্টিকেল কুৱেশ্যন অন পেজ নম্বৰ 1.115 illustration question number 15, শান্তিপুৰ এথলেটিক ক্লাব,
question to naam Hantipur Athletic Club. ठीक है clear? So if you have book, please open it. Hantipur Athletic Club. If you do not have, no problem, we have our question on our screen. So here we have the question. कहाँ गया भाई? ओ भाई, so this is the question, but what happened? Yes, now it is in my control. Okay, so this is the question. Clear? Screenshot ले लो. 1 2 3 click. 1 2 3 click. Is it clear? Okay. No, this is 18. delete करा. And 15 to करिला. ठीक है से 18 तो हमें करिम. But before 18, let's do the 18 one. अच्छा तो काम करा. First 18 तो करो. First 15 करिम. ठीक है से. So we have the question 18. Question number 18 is in page number is 1.117. 1.117. Question name is Nalbari Sport Club. Okay, here you have the question Nalbari Sport Club. ठीक है screenshot ले लो again. Already लोइसा delete करने सके. ठीक है, so aha question to. From the following particular, prepare receipt and payment account of Nalbari Sport Club for the year ended 31st December 2018. Receipt and payment account key format about T format. Good. Receipt, rupees, payment, receipt. Correct. ठीक है clear. So aha किसमें data दिया है, so prepare करो. Okay, start. Please बच्चों cooperate with me. Format कैसे था? Yes, T format. ठीक है से. So here we have the format. T format. Do it fast. Class 12 হয় একদম ট্রান্সপারেন্ট কনসেপ্ট রাখিবা এটা বস্তু ক্লিয়ার করিবা ঠিক আছে एक एक चीज को क्लियर करना वरना तक से होगी okay start with the format in front of us. What do you have to write? You have to write this side debit, okay, this side credit. So receipt, rupees, payment, rupees. On the top you have to write the name of the club, Nalbari Sport Club. Receipt and payment account. Please question exam receipt and full likhiba moi eta NRP account likhisu for the year ended ... ठीक है से clear. So I start करो. First one is subscription receipt including. It's a question तुम्हारा आने दिया भालो बोल सके ना ज़्यादा question. Okay. So subscription receipt. First thing is that subscription माने किए से paying money by the members of the club. ठीक है से इटे को रिश्ते में ना फार्स्ट रेकॉर्ड करिम ना करो पैसा इनफ्लो होइसे रेकॉर्ड आमी करिम रिसीट. क्लियर? वेरी गुड. ठीक है से बच्चों बहुत बढ़िया. ठीक है अगर आप लोग आंसर दे पा रहे हो दैट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग. ठीक है से आज आंसर দিব পাৰা না একো নাই লাহে লাহে শিকি যাবা. সাবস্ক্রিপশন রিসিপ্ট টোটাল সোয়া total amount is 20,600. It's 20,600 total amount ঠিক আছে but including rupees 100 for 2017 100 টাকা 2017 মানে যোৱা বছৰৰ and rupees 600 for 2019 মানে future year কাৰণে already দি থৈ দিছে কিমান 600. এতিয়া মোক কোৱা ৰিসিপ্ট মানে কোনটো পইণ্ট হিট কৰিছে মাস্টাৰ পইণ্ট মন কৰা past present future. Absolutely correct. Very good.
কোনটো পইণ্ট হিট কৰিছে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফিউচাৰ সো আমি ৰেকৰ্ড কৰিম নে ওম ইগনোৰাই নামা মনত কৰা ইন ৰিচিপ্ট এণ্ড পেমেণ্ট একাউণ্টে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট ফিউচাৰ ৰেকৰ্ড কৰে নে আই ৰিপিট ৰিচিপ্ট এণ্ড পেমেণ্ট একাউণ্টে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট ফিউচাৰ ৰেকৰ্ড কৰে নে এগেইন আই ৰিপিট ৰিচিপ্ট এণ্ড পেমেণ্ট একাউণ্টে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফিউচাৰ ৰেকৰ্ড কৰে ইয়েছ ৰিচিপ্ট এণ্ড পেমেণ্ট একাউণ্টে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট ফিউচাৰ ৰেকৰ্ড কৰে এতিয়া মোক কোৱা ফাৰ্ষ্ট এই যে 20600 ৰেকৰ্ড কৰিম নে কিবা প্লাছ মাইনাছ কৰিম কোৱা no need to do any plus and minus because no need to do adjustment because so 8600 to include ase job bosor and future year ठीक है so you have to record 20600 এটা কাম কৰো মগে এতিয়া বুজি লোৱা লাষ্টত একলাই লিখি লবা ঠিক আছে টু subscription কিমান আছে 20600 clear কোনবা যদি লিখি যাইছো কি লিখি লবা পাৰা বাট পিছত লিখিলে হ'ব next is what next we have subscription outstanding for 2018 current year outstanding subscription outstanding outstanding মানে কি মানে আমি নাপালো বাট পিছত পাম আমি ৰেকৰ্ড কৰো নো ওম ইগনোৰাই নামা because outstanding এটা আমি ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউণ্টত সৰি ৰিসিপ্ট এণ্ড পেমেণ্ট একাউণ্টত ওম ইগনোৰাই নামা কৰো গুড ঠিক আছে দেন স্যালাৰি পেড মানে স্যালাৰি দিছা ইনক্লুডিং 500 ফৰ 2019 মানে ফিউচাৰ ইয়াৰৰ কাৰণে and 1000 for 2017 total 7500 total তুমি salary কিমান পে কৰিছা 7500 তাৰে তোমাৰ out of that 7500 500 is related to future year and 1000 is related to the past year doesn't matter because हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं past present future हम लोग तीनों के तीनों रिकॉर्ड करते हैं ठीक है सो पेमेंट साइड में जाएगा बाय सैलरी कितने हैं इट्स 7500 ठीक है क्लियर बच्चों बोलो बेटा ठीक है नेक्स्ट वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग 200 फॉर 2000 देखो कंफ्यूजन कितना करते हैं लेकिन कोई एग्जामिनर को पता नहीं है मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है ठीक है वो लोग बहुत सीख गए अभी डिसीजन मैनेजमेंट के बारे में कभी भी दो कुछ भी दो हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए कहता हूँ अकाउंटेंसी के टाइम मुखस्त नकरिबा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिबा सबा 100% 100% নহয় 95 যদি নোপোৱা ন গোটে টিউশন ফি ৰিটাৰ্ণ দিম মই যদি মই কোৱা কথাবিলাক শুনা ঠিক আছে আই ৰিপিট ঠিক আছে মই আজি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো শুনা যদি 95 যদি তুমি একাউন্টেন্সি যদি নোপোৱা মই কোৱা কথাবিলাক যদি শুনাৰ পিছত দেন মই তোমাক গোটে টিউশন ফি ৰিটাৰ্ণ দিম ঠিক আছে ক্লিয়াৰ মন ৰাখিব ঠিক আছে provided you have to listen each and everything whatever I instruct to you ঠিক আছে যেনেকৈ মই পঢ়িবা তুমি হেনেকৈ পঢ়িবা আৰু পঢ়াৰ পিছত 95 নোপোৱা গোটে টিউশন ফি I will give you back ক্লিয়াৰ পাম্পাৰ অফাৰ মন ৰাখিবা যাক পইচা ঘৰে লাগে 95 কম আনিবা ঠিক আছে একদম এক্সামত লিখিবা 94 লিখি আহিবা এক নম্বৰ জানিলেও নিলিখিবা ঠিক আছে টিউশন ফি গোটে ৰিটাৰ্ণ পাবা নেক্সট ইজ what creditors for printing and stationery outstanding for 2018 current year outstanding ignore हटो हम लोग को रिकॉर्ड ओ सॉरी सर ऊपर এটা আছে সো এটো আমি यस वी हैव सॉल्व बट আমি লিখা নাই ঠিক আছে माने मैंने तुम लोग को क्लियर कर दिया ठीक है हम लोग शायद नहीं लिखे है ना कौन सा इनकम है दिस वन इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग ₹200 फॉर 2017 इज 2000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी তুমি কিনিছা ঠিক আছে স্টেন্ড পেন কিবা কিবি ঠিক আছে सो पेमेंट साइड सो लिखा नहीं ऑफर दे रहा था ना इसलिए भूल ही गया क्या होगा इसमें बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 2000 क्लियर The next one is creditors for printing and stationery outstanding for 2018 outstanding है तो भर में जाओ इग्नोर ठीक है हम लोग रिकॉर्ड करना ही नहीं है डोनेशन रिसीव्ड ₹5000 डोनेशन मिला है ठीक है किस साइड अच्छा এনেকে বহুত টাইম লস হয় ঠিক আছে ক্লিয়ার সো মই কি কৰো কোশ্চেন তো মই মুখেৰে কৈ থাকিম তুমি ধ্যান দিবা মানে মোৰ বুক আছে মই বুকৰ পৰা চাই সলভ কৰিছো ঠিক আছে নট এনসার এনসার নাই বুকত কোশ্চেন তো চাই আছো টু ডোনেশন रिसीप्ट किमान আছে 5000 क्लियर देन बुक खान यूज दे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कैपिटल रिसीप्ट बार আমি रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट सब रिकॉर्ड
करो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड किमान আছে 10,000 ঠিক আছে then we have expenses on exhibition matches খৰচ হৈছে মানে কিবা গেম পাতিছিলে তাত ক্লাবখনৰ খৰচ হ'ল ক্ৰিকেট ক্লাব হয় স্পৰ্ট ক্লাব সো অবভিয়াসলি গেম পাতি থাকিব exhibition so handwriting please sorry handwriting একদম বেয়া উপায় নাই বোৰ্ডখন পেনটোৰ যোনটো ডায়ামিটাৰ বহুত ডাঙৰ হয় so it's very tough to hold it okay then next one we have maintenance of ground খন মেইনটেইন কৰিছা পইচা কৈছে গ্ৰাউণ্ড নহয় তে কিন্তু গ্ৰাউণ্ড maintenance of ground किस सेट जाएगा पेमेंट सेट में 2000 then we have sport material purchase किस सेट जाएगा बेटा पेमेंट साइड करेक्ट ठीक है स्पोर्ट मटेरियल परचेस एग्जाम यदि एमपी लिखे है ना हमें बगी होगा कितना है भाई 10,000 रुको हम स्केल ले लेता हूँ कंफ्यूज होता है देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पेमेंट साइड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना है 7,000 है सही है बेटा नेक्स्ट वी हैव डोनेशन पेड डोनेशन डिसाइडेड डोनेशन पेड बेटा पेड चैरिटी माने गम पाइছে না ৰিসিভ নহয় পেড কোন সাইড যাব पेमेंट साइड कंफ्यूजन दे कंफ्यूजन इसमें एक में कर देता मार्क डायरेक्ट रिसिप्ट साइड लिखि दिला হয় इवन মই লিখিব ওলাইছিলো तो डोनेशन पेड হয় ध्यान रखो मैं डोनेशन पेड मैंने की बेटा पैसा दे रहे हैं हम लोग ठीक है पैसा हम लोग दे रहे हैं मतलब क्रेडिट साइड चैरिटी आ गया हमारा चैरिटी जो कोई एग्जाम में रॉन्ग कराता है लेकिन हम लोग को पता है दान दिलो खरच हो दान दिया खरच हुआ दान दिया खरच हुआ दान दिया खरच हुआ इज नोन एज चैरिटी सो पेमेंट साइड देन स्पोर्ट मटेरियल ऑन हैंड देखो स्पोर्ट मटेरियल ऑन हैंड 2000 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मार्क कर दो ठीक है मैं भी मार्क स्पोर्ट मटेरियल ऑन हैंड दैट मीन्स तुम्हारे हाथ में सपोज तुमने फुटबॉल खरीदा था ठीक है सपोज तुम्हें फुटबॉल किनिसा ठीक है सपोज यू परचेज फुटबॉल ओके मैं लिखि किने बुझाइले बेटा फॉर एग्जांपल स्पोर्ट मटेरियल तुम किनिला फुटबॉल ठीक है व्हेन यू परचेज फुटबॉल सपोज यू परचेज 3 फुटबॉल ओके 3 पीस एंड इट कॉस्टिंग ₹15,000 जेतु 15,000 परचेज करिला तुम सपोज लास्ट ईयर किनिबा जेतियो किनिसिला ठीक है जब तुमने खरीदा था 15,000 का फुटबॉल आंसर में तुमने रिकॉर्ड किया था कि नहीं किया था बोलो ऑब्वियसली तुमने रिकॉर्ड किया था किस सेट पेमेंट सेट क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा था ठीक है कोई भी ईयर्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट यू ऑलरेडी रिकॉर्ड ₹15,000 अब बोला इस 15,000 में से तुम्हारे पास 2,000 का जो स्पोर्ट मटेरियल हाथ में है मतलब बैलेंस रह गया नाउ आंसर मी इज देयर एनी कैश आउटफ्लो और इनफ्लो ये 2,000 है तुम्हारे हाथ में इस ट्रांजेक्शन से तुम्हारा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहे क्या नहीं हो रहे बेटा क्योंकि हो रहा था 15,000 का ऑलरेडी यू हैव रिकॉर्ड 15,000 ऑलरेडी यू हैव रिकॉर्डेड 15,000 सो नो नीड टू रिकॉर्ड अगेन एंड अगेन तब डबल हो जाएगा ठीक है तो ये जो 2,000 है वो इग्नोर है नमा क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी 15,000 रिकॉर्ड किया है उस 15,000 में से 2,000 का स्टॉक तुम्हारे पास रह गया सो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे ठीक है अच्छा मैं एक बार दिखा देता हूँ बच्चों को जिसके पास क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में बोल रहे हैं ठीक है लेट मी हाईलाइट दिस वन ठीक है क्लियर 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 है एब्सोल्युटली राइट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे सो नेक्स्ट वी हैव टेलीफोन चार्जेस इंक्लूडिंग 200 फॉर 2019 2,400 सब आएगा टेलीफोन चार्जेस कितना है 2,400 देन वी हैव लिगेसी दान मर गया लेकिन दान दे गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा लेकिन रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में आएगा रिसीप्ट साइड ठीक है क्यों रिसीप्ट साइड क्योंकि हम लोग को मिल रहा है ना कुछ प्रॉपर्टी तो इनफ्लो हो रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन क्लियर
देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेमेंट साइड मिसलेनियस खर्च माने छोटा मोटा खर्च सरू सुरा खर्च ठीक है कितना है 1200 देन रिसीव फ्रॉम एग्जिबिशन मैच खन जे पातिছিলে তাৰ পৰা কিবা পাইছে মানে টিকেট চিকেট বেছি পইচা পাইছে रिसीव फ्रॉम मैथ्स एग्जीबिशन ठीक है कितना है बेटा 15,000 देन वी हैव सेल प्रोसीड ऑफ स्पोर्ट मटेरियल मतलब स्पोर्ट मटेरियल था उसको बेच दिया सेल क्या हो गया भाई सेल प्रोसीड ओके सेल प्रोसीड ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कितना है अच्छा सेल प्रोसीड सॉरी इट्स रिसीव्ड सेल प्रोसीड माने बेसिकली पैसा पाइसे ठीक है सो कोनটো साइड যাব रिसीव साइड ओके extremely sorry it's receive side please ध्यान दिया सेल प्रोसीड मान 2 होबो ओके to sell proceed of sport material clear correct kora to sell proceed mane ki bostu basically nahi paisa be so obviously receive side then newspaper and magazine 2000 মানে তুমি newspaper magazine কিনিছা ঠিক আছে newspaper and magazine closing balance नहीं closing balance वाला किंतु हमें नहीं लिखिलो है तुमने न्यूज़पेपर और मैगजीन अपने क्लब पे रखते हो हर लोग रखता है ना घर पे महीने में पैसा रखता है ठीक है देन वी हैव सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अगेन डेबिट साइड टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है 400 इजे আমি যেন বেচো ৰেক পিকাৰক টিং লোৱা বস্তু বেচো নে বেচো হেনেকে ইয়াতে বেচিছে দেন কেছ এণ্ড বেংক বেলেঞ্চ 5000 अच्छा दिस वन इज ओपनिंग बैलेंस देखो आप कंफ्यूजन क्या है डेट देखो 1/1/2018 वही तो मैं सोच रहा था ये ओपनिंग बैलेंस है तो बेटा ये जो ओपनिंग बैलेंस यू हैव टू राइट हियर टू ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैग लास्ट में दिया लोग स्टूडेंट को मेरे बच्चों को कंफ्यूजन कराने के लिए कि शायद इन लोगों को लगे कि एक क्लोजिंग बैलेंस है बट डेट हम लोग का दिया हुआ है 1/1/2018 सो वी हैव फिनिश्ड इट It's time to close. Position है किबा? Good. So let's do the total. So करा सबे total जाने मैं नकरो तुम्हारे करी बोले इबो तासोते मैं करी ठीक है से start 1 2 3 हातेरे करा ठीक है से আমি ডেবিট সাইড টোটাল পাইছো রাফত লিখিলো হা ডেবিট সাইড ইজ 62500 ওকে এন্ড ক্রেডিট সাইড কিমান পাম আমি 7500 2000 কৰি আছা তো সবে कैलकुलेशन मुक सा ऐसा सब लोग कर रही हो ना कोई कैलकुलेशन 10000 7000 41,600 so yes credit side is 41,600 अच्छा बेटा अभी बोलो मुझे नीचे हम लोग कौन सा लिखेंगे जिस सेट बड़ा है that is 62,500 इससे हम लोग क्या माइनस करेंगे सर पूछो बेटा पूछो क्या माइनस करेंगे क्रेडिट सेट सर करेक्ट सर we get 20,900 the heading is by balance CD cash and bank balance clear finish complete so मेरे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पक्का लिख के मुझे व्हाट्सएप या कहीं भी आप लोग भेज सकते हो ठीक है सो अगर कुछ डाउट है प्लीज डू इट क्लियर
अभी के अभी क्लियर करो, मुझे कॉल करो, और या तो कमेंट भी कर सकते हो आप लोग। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी माई मेन मोटिव इज़ टू प्रोवाइड यू फ्री ट्यूशन क्लासेस थ्रू यूट्यूब। ओके, कोई बच्चे ऐसे जो ट्यूशन नहीं ले पा रहे, ठीक है, कोई तो मेरे यहाँ पे आते हैं, उन लोग का फाइनेंशियल कंडीशन लगभग ठीक है इसलिए आ रहे, किंतु কিছুমানে এনেকুৱা আছে যোনে টিউশ্যন ল'ব পৰা নাই। চ' ফৰ দ'জ প্লিজ দিছ ইজ কমপ্লিটলি ফ্ৰী, নো নীড টু পে এনি এমাউণ্ট, আ সিংগল এমাউণ্ট, জাষ্ট देयर इज ओनली वन कंडीशन, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू स्टडी। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग ट्यूशन नहीं ले पा रहे, आप लोग का पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे क्लास कीजिए और फ्री क्लास कीजिए। और इस वीडियो को मैं अपने स्टूडेंट को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे पे कर रहे हैं, ट्यूशन फी जो दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी सीखने को मौका मिले। ठीक है, क्योंकि आजकल आप जहाँ भी ट्यूशन लेने जाओगे यू हैव टू पे अ लॉट। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा ही ट्यूशन फी पे कर रहे हो। सो अगर आप लोग को ट्यूशन लेना भी है देन ऑल्सो यू कैन टेक इट। हम लोग के यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस है। आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, हम लोग फ्री ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन मिडिल क्लास लेवल के हो आप, तो हम लोग आप लोग से ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, वी टेक मनी अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स एफर्ट। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग को ट्यूशन लेना है आप ले सकते हो, ट्यूशन फी बहुत कम है। और आप लोग को ट्यूशन नहीं भी लेना है कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब से क्लास ले सकते हो। ठीक है, और आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट, मैंने पहले बोला था कि आज हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे लेकिन नहीं हो पाया, सिर्फ 2 ही हो पाया। ठीक है, बाकी के 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो अभी तक 40 मिनट्स का हो चुका है, आई थिंक 50 मिनट्स का हो चुका है। ऐसे आप लोग बैठ नहीं पाते हो, तो आप लोग का दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मैं आज क्लास क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स एंड इलस्ट्रेशन नंबर 15 करेंगे। ठीक है, और जो लोग ने कर लिया वेल एंड गुड। ठीक है, और 15 में कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। ठीक है, सब इजी है, बस लास्ट में स्टेशनरी इन हैंड में ध्यान देना, वो नहीं आएगा जैसे यहाँ पे स्पोर्ट मटेरियल पे था। ठीक है, बाकी सब के सब सेम है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, होप सब वीडियो वाला बुझी पाइसे, सबको समझ में आया। ठीक है, एंड होप सब ठीक से पढ़ाई कर रहे हो। सी स्टूडेंट, लाइफ इज योर्स, योर टूडेज वर्क डिसाइड योर फ्यूचर। आई रिपीट, योर टूडेज वर्क डिसाइड योर फ्यूचर। लाकत बिलीव करिबा but completely बिलीव नकरिबा। 80% is depend on your hard work and 20% is on luck। See, life is like ludo। लुडो गेम जाना सबे, लुडोर की करो कोৱাচোন, নাম্বাৰ পাওয়ার লাক, ঠিক আছে, but how you are going to using that number? Suppose তুমি 6 মাৰিলা তুমি ইউজ কৰিব নাজানা, so is there any benefit of luck? No। so what I want to say, তোমালোকে ভাবিছা লাকত যি সেইটো, no, your work decide what you are going to become in your future time। I repeat, your work depend, my dear, your work depend, 80% is depend on your work and 20% depend on your luck। ঠিক আছে, and ভগৱানক প্ৰে কৰিবা 20% লাক তোমাক ভগৱানে দিব। মেইন থিং is that how you are going to handle। so my dear student, bye bye, take care, do study, build your career।